इंस्टाग्राम देखते हैं तो एक राइज है मीम कम्युनिटी में। जो बच्चे हैं वो अपनी बातें मीम्स के थ्रू कह रहे हैं, थ्रू जोक्स कह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बच्चे इंटरनेट रिकग्निशन ढूंढ रहे हैं, मे बी बिकॉज दे आरंट हर्ड एट देयर होम्स बाय देयर पेरेंट्स। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, बिल्कुल यही होता है। पापा, can I talk to you? Not now. Can't you see I'm working? Don't disturb your father. एग्जैक्टली अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, आपने अभी बात करी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला तो उन्होंने जेंजीज ने वही वर्ड पकड़ा और अपनी पार्टी का नाम ही वही रख लिया। जो नॉर्मल पीपल हैं वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये कोई प्रोटेस्ट थोड़ा ही तो एक मीम प्रोटेस्ट है, बिकॉज जो बच्चे जो स्लोगन्स गा रहे हैं कि देखो कॉकरोच आ गए मंत्री जा रहे हैं, सो बेसिकली वो मीम्स के थ्रू, अब जोक्स के थ्रू प्रोटेस्ट में लड़ रहे हैं, स्लोगन्स गा रहे हैं। सो जब एक नॉर्मल पर्सन ये देखता है सिनेरियो तो वो कहता है कि जेंजीज जो हैं वो अनसीरियस हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो तो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अगर वो लेंस साइकोलॉजी सेज कि जो आपने बोला कि एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस थ्योरी है कि जब एक इंसान या एक बच्चा जब हेल्पलेस फील कर रहा होता है तो उसको लगता है कि दिस अ कोपिंग मैकेनिज्म, ह्यूमर। So they are using humor as a coping mechanism to hide their feeling of helplessness, कि उनको पता है कि मैं हेल्पलेस हूँ इस सिचुएशन में, शायद मेरे एक के बोलने से क्या ही हो जाएगा, तो इसलिए वो ह्यूमर यूज कर रहे हैं टू एक्चुअली हाइड देयर हेल्पलेसनेस। वेलकम टू अ पॉडकास्ट where we try to dive into the minds of extraordinary people who have either broken barriers, shaped industries, or those who can inspire billions. Today on this podcast, we'll be touching upon a very sensitive topics. Last month, lakhs of students gathered at Jantar Mantar to raise their voice against NEET paper leak. They were asking for exam reforms. They were asking for resignation of Dharmendra Pradhan. What we could also see was Gen Zs and students there were using memes and humorous slogans to create awareness and to raise their voice against the paper leaks that are happening around the years. According to psychology, if we could see all of this situation through psychological lens, we can understand that Gen Zs and students are using humor as a coping mechanism to hide their helplessness. To briefly talk upon this issue, we have called Dr. Nafisa Chishti on this podcast to talk about all those psychological theories that will help you understand that why people are using humor to hide their helplessness and what are the other coping mechanisms that they could use. Also, what is the impact of these coping mechanisms that they're hiding their emotions? They're hiding their emotions somewhere in the body. What will be its impact on their body and mental health? This podcast is for all the parents and the students who want to understand their children better, that the sarcasm and the humor that they are using to talk on these scary topics in their everyday life, what does it actually means. So please stay tuned till the last of the episode. Welcome to our podcast, ma'am. It's a pleasure to have you. Please introduce yourself to our audience. hello Ramnik, hello everyone. I am Nafisa Chishti, counseling psychologist, NLP and CBT practitioner, life coach and a parenting coach and a hypnosis therapist. Okay, ma'am. So, ma'am, that was a great introduction. Ma'am, हम जब भी hypnotherapist का नाम सुनते हैं हमें लगता है there is somebody who can read minds. हमारी कंट्री में लास्ट मंथ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए जहाँ पे लाखों बच्चे इकट्ठे हुए एंड वो लड़ रहे थे जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो भी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इन हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिनकी वजह से वो उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। कहीं ना कहीं वो हर साल पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी मेहनत जो है वो रंग नहीं ला पा रही बिकॉज ऑफ जो कमियां एजुकेशन सिस्टम में है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन रिफॉर्मर्स के हाथ में है, वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभा पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा था। आपका इस पे क्या आउटलुक है एक साइकोलॉजिस्ट की आईज से? बिकॉज आई थिंक वेन एवर वी सी अ प्रोटेस्ट हम उसको एक बहुत नेव आईज से देखते हैं, बट एक साइकोलॉजिस्ट इसको एक डिफरेंट आईज से देखता है। तो आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दोज प्रोटेस्ट्स?
ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल कि बच्चे जो खड़े हुए थे, एक साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा और एक नॉर्मल कॉमन मैंस का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो Exactly. सकता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन से, बच्चे जिस भी कॉज पे हैं वो बिल्कुल ट्रू और वैल्यूएबल था एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू। एक बच्चे ने अगर इनिशिएटिव या किसी एक ने इनिशिएटिव लिया जी तो उसके साथ सबने ही इनिशिएटिव लेना शुरू किया, क्योंकि उनका मेन एजेंडा एक ही था, जी उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनका आगे पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव। जी अब हमारा नज़रिया यही होता है देखने का कि हम, एक थेरेपी है लर्नड हेल्पलेसनेस, जी उस पे क्या है कि हम बच्चों को, इंडिया के अंदर कल्चर ये है कि बच्चों को बचपन से ही पेरेंट्स क्या कहते हैं, बस यू आर नथिंग एट ऑल, या आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, बस जी। करो, या अकेले तुम क्या करोगे, एग्जैक्टली जब कोई और किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जी। अगर किसी बच्चे को, किसी को भी प्रॉब्लम होती है, किसी पे भी, जी। अगर वो अपना स्टैंड लेता है तो बचपन से पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नाउ डेज जेनजीज आर वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, या उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है जो हमारे टाइम पे या पहले के टाइम पे था। Exactly. तो उनका यही था कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर आवर ओन सेल्फ। जी हम पेरेंट्स भी ऑब्वियसली अब तो सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि एक अगर कोई भी खड़ा हुआ है उसको लगा कि सब, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, उसकी भी यही प्रॉब्लम है, तो सारे इकट्ठे खड़े हो गए Exactly. फॉर वन ऑन प्रॉपर उनके अपने खुद के कॉज के लिए कि हमारा फ्यूचर, हमारी एजुकेशन। जी। और जहाँ तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम की बात है, वो तो शुरू से ही है, उस पे तो सारे ही कर रहे हैं, तो उस पे तो मैं क्या ही कमेंट्स कर सकती हूँ। बट नो डाउट अबाउट इट कि अगर किसी एक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एजुकेशन सिस्टम, तो ही शुड हैव टू टेक द एग्जैक्टली सो मैम, मैंने रिसर्च किया इस बारे में, तो मैंने ये जाना कि जहाँ हम वो पीपल वो पॉइंटिंग आउट, जो नॉर्मल पीपल हैं वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये कोई प्रोटेस्ट थोड़ा ही था, एक मीम प्रोटेस्ट है। बिकॉज जो बच्चे जो स्लोगन्स गा रहे हैं कि देखो कॉकरोच आ गए, मंत्री जा रहे हैं, सो बेसिकली वो मीम्स के थ्रू, अब जोक्स के थ्रू प्रोटेस्ट में लड़ रहे हैं, स्लोगन्स गा रहे हैं। सो जब एक नॉर्मल पर्सन ये देखता है सिनेरियो, तो वो कहता है कि जेनजीज जो हैं वो अनसीरियस हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो तो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अगर वो स्लोगन्स गा रहे हैं तो। बट व्हेन वी लुक एट थ्रू साइकोलॉजिकल लेंस, साइकोलॉजी सेज कि जो आपने बोला कि एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस थ्योरी है कि जब एक इंसान या एक बच्चा जब हेल्पलेस फील कर रहा होता है तो उसको लगता है कि दिस अ कोपिंग मैकेनिज्म, ह्यूमर। सो दे आर यूजिंग ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू हाइड देयर फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि उनको पता है कि मैं हेल्पलेस हूँ इस सिचुएशन में, शायद मेरे एक के बोलने से क्या ही हो जाएगा, तो इसलिए वो ह्यूमर यूज कर रहे हैं टू एक्चुअली हाइड देयर हेल्पलेसनेस। सो मैंने रिसर्च करके ये जाना कि साइकोलॉजिकल लेंस के थ्रू हम ये जान पा रहे हैं कि ये भी उनके जेनजीज के या नॉर्मल इंडिविजुअल के भी कोपिंग मैकेनिज्म है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, एक्चुअली ह्यूमर इज एन इमोशनल टेक्निक, उसके पीछे उनका बीनीथ एक इमोशन तो छुपा हुआ है ना जी। वो इमोशन क्या है? फियर, हेल्पलेसनेस। तो जेनजीज का जो ह्यूमर है वो एक तरीके से अपनी बात को कहने का तरीका है न्यू ट्रेंड में, जी। कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं तो हम मीम्स और ह्यूमर या जोक्स के थ्रू अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, जो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, और उसके पीछे उनका जो इमोशन है, हिडन इमोशन, वो जो है वो पेरेंट्स को देखना चाहिए, या जो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जी। जैसे लाइक जेनजी जो मीम्स छोटे छोटे या इमोजीज आजकल, आप यू आर अवेयर ऑफ दिस, तो उसके पीछे क्या है, हम अपनी बात को लेंदी ना करके एक छोटे से इमोजी में डिस्क्राइब कर देते हैं, मीम्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। आई एम स्केयर्ड, इफ आई एम एंग्शियस, आई एम वरिड, ये लाइंस को आप एक्सप्रेस ना करके दूसरे वे में, दूसरे अंदाज में, ह्यूमर में कह रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो एन इमोशन ना जी। बीनीथ इसके है, तो आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड में इमोशंस ही हैं जो आप उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं।
ओके, सो मैम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या इसका कोई ड्रॉबैक है या नेगेटिव इम्पैक्ट है एक इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो इमोशंस हैं वो कहीं सप्रेस हो रहे हैं, मैं इमोजीज के थ्रू उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो क्या इसका एक बच्चे की साइकोलॉजी पे या एक इंडिविजुअलिटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे बात कही जी, कि सारे कॉमनर्स में ये लग रहा था कि दैट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। नो, जेनजीज आर वेरी स्मार्ट, जी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। या नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव में तो ये है कि दे आर नॉट हर्ड, उनको सुना नहीं जा रहा, जी, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जी। तो वो जो इमोशन सप्रेस्ड हो रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जी। हो, तो ये एक उनका कोपिंग मैकेनिज्म हो गया थ्रू इमोजीज और थ्रू मीम्स। आई Got it? अंडरस्टैंड, कि यस, अगर मैं अपनी बात को दबाए जा रही हूँ और मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कहती हूँ तो कोई सुन ही नहीं रहा या कोई बात हो ही नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपका इमोशन कभी तो बाहर आएगा ही ना। Exactly, yes. तो आपका एक तरीके से ये एक्सप्रेस करने का तरीका है थ्रू इमोजीज, ह्यूमर, जोक्स और मीम्स, यू कैन से, कि एटलीस्ट हमें सुना जाए। जी, मैं समझ गई मैम। सो मैम इसमें क्या पेरेंट्स का भी रोल होता है कुछ? बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का, बहुत बड़ा मेजर रोल है। पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर ये ह्यूमर यूज कर रहा है वो नॉर्मल है या कैसे है। जी। क्योंकि एक होता है कि मजाक मजाक पे, जैसे आपने कहा, हम अपनी बात कह देते जी, जी। उस मजाक के पीछे हिडन बच्चे का इमोशन क्या था, उसके अंदर किस चीज की फीलिंग आ रही है। या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि जो बच्चा है कि वो सच में सिर्फ sarcastic हो रहा है या वो बस मजाक कर रहा है या वो एक्चुअली कुछ कहना चाह रहा है जो कभी नहीं सुना गया था शायद। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर बच्चा हर बात में मजाक कर रहा है जी, लेकिन साथ में वो अपनी स्टडीज पे भी फोकस कर रहा है, अपनी जी, जी। हेल्थ को भी देख रहा है, जी। बाकी सारे भी चीजें ठीक है, तो देन इट्स नॉर्मल, इट्स Okay. ओके। लेकिन हर बात को मजाक में ले रहा है लेकिन अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहा और चुप है और किसी चीज पे फोकस नहीं हो रहा, ध्यान नहीं दे रहा, या फैमिली में भी इंटरेक्शन नहीं हो रही है, जी। तो आप इसको रेड फ्लैग मान सकते हैं। आप पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे से बैठ के बात करें कि इज इट ट्रू, आपका ये ह्यूमर एक जनरली था या इसके पीछे आपके व्यूज क्या है, ओपिनियन क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, आपको क्या फील हो रहा है, आपके अंदर ऐसे क्या इमोशंस आ रहे हैं जो आप इस वे में बात कर रहे हैं। जी। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चे को बैठे सो दैट कि आपका एक बच्चे के साथ कम्युनिकेशन आगे फर्दर बढ़ सके और वो एक्सप्रेस कर सके नॉन जजमेंटल, बिल्कुल। कि पेरेंट्स बच्चा कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है उसको जज ना करे। नॉन जजमेंटल कन्वर्सेशंस आगे हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है। बिल्कुल मैम। सो मैम एक और थ्योरी है बिनाइन वायलेशन थ्योरी ऑफ ह्यूमर, उसमें भी सेम ही कहा गया है कुछ कि कुछ टॉपिक्स जो बच्चा स्कैरी समझता है वो कोशिश करता है कि वो ह्यूमर की फॉर्म में उस चीज को बोल दे, क्योंकि सेम Exactly same, वही चीज तो आ गई। वही ना, मतलब साइकोलॉजी में व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिलेट सीजेबी प्रोटेस्ट विद दिस, सो मुझे बहुत इंटरलिंक्ड लगा, तभी मैंने ये टॉपिक लिया इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज मैं जानना चाहती थी कि डज इट रियली होल्ड्स रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड एज वेल, बिकॉज दीज आर थ्योरीज बट इट Exactly. एक्चुअली होल्ड्स, Yes, बिकॉज कहीं ना कहीं absolutely. जो बच्चे शायद उन्होंने कभी एक मंत्री को जाके कुछ मिले ना हो, कुछ कहा ना हो, उनको जब एक सोशल आइडेंटिटी मिली, मैं अकेले खड़े नहीं हो सकती किसी के खिलाफ, तो व्हेन पीपल गैदर्ड, व्हेन स्टूडेंट गैदर्ड, तो उनको जो एक स्कैरी टॉपिक था वो उन्होंने आगे पेश किया इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमर, राइट। सो जब हम एक नॉर्मल डेज में लागू करते हैं इस थ्योरी को मैम, सो पेरेंट्स का क्या रोल है, मैं वही जानना चाहती हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताएं, जैसे कुछ स्केरी टॉपिक्स होती हैं जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं बात कर पाते और बच्चे करना चाहते हैं तो वो ह्यूमर की फॉर्म में करते हैं, या और भी कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आई थिंक माई चाइल्ड इज डीलिंग विद समथिंग एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी बट ही इज नॉट,
सो क्या कुछ ऐसी हैं, कोई सिग्नल्स हैं जिसके से आपने कहा कि आप NLP में ट्रेन है, यू कैन रीड माइंड्स, यू हैव नो द लैंग्वेज ऑफ माइंड्स, सो इफ आई वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस? NLP में मैम यही है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स, ओके, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, इट्स अ लैंग्वेज। अब उसमें जैसे आपने कहा कि बच्चे जब भी कोई ह्यूमर या कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसके पीछे हिडन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता ही है ब्रेन में। अब पेरेंट्स को कई बार ही समझ आता है, लेकिन उनको ये आई डोंट नो, सॉरी, कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है या लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देयर है या कॉन्फिडेंस, whatever you can say, but the thing is कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ आराम से बैठ के बात जरूर करें। जी, कनेक्शन बच्चे के साथ मेंटेन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज पेरेंट्स बिफोर करेक्टिंग अ चाइल्ड। कनेक्शन बिल्ड होगा तो बच्चे को आप करेक्ट कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली वही चीज़ आपने जैसे अभी मुझसे पूछी कि अगर कोई भी ह्यूमर या कोई भी थ्योरी ये आज के टाइम पे रेलेवेंट बिल्कुल करती है, क्योंकि जो स्केरी टॉपिक्स है, बच्चा अगर किसी चीज़ को लेकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और अगर वो किसी ह्यूमर या किसी और सरकास्टिक वे में कर रहा है, तो हिडन उसके ब्रेन में बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ है। अब वो बहुत कुछ इतना सारा उसने वन लाइनर में आपको डिस्क्राइब कर दिया, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट, और आप कह सकते हैं कि वो बच्चे के साथ बैठे बात करे कि व्हाट्स in your mind, what you want to say, can you be elaborate, non-judgmental, बैठे बच्चे के साथ बात करें, बच्चे के साथ एक्सप्रेस करें और सुने बच्चे को। अपना कोई केस बता सकते हैं मैम ऐसे जिसमें आपने किसी बच्चे के साथ डील किया हो? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, एग्जैक्टली, कि बच्चा लोनली बहुत फील करता है, पेरेंट्स नाउ डेज आर वेरी बिजी ऑन देयर ओन, और बच्चे को आजकल सिर्फ गैजेट्स दे दिए हैं पेरेंट्स ने, तो उसकी लाइफ गैजेट्स तक ही रह गई है। ह्यूमन कनेक्शन जो है, पेरेंट का जो बच्चे के साथ बॉन्ड है, वो एक धीरे धीरे ब्रेक हो गया है, क्योंकि मदर फादर बोथ आर वर्किंग, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ्स। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, घर के बाद उसके बाद PS5 है, फोन पे है, फ्रेंड्स भी आजकल ऑनलाइन ही हैं। ट्रू, ठीक है, तो आपने बच्चे को एक ऐसा फॉर्म दे दिया है जिसपे वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कहाँ करेगा। पेरेंट्स के पास टाइम होगा, बैठेंगे बच्चे के साथ कि हाँ जी आपका कैसा दिन निकला, थोड़ा टाइम भी बच्चे दें, अगर पेरेंट्स दे बच्चे को, तो बच्चा एक्सप्रेस कर पाएगा। आज के टाइम पे पेरेंट्स के पास टाइम बहुत कम है, तो उसकी वजह से बच्चा बहुत लोनली फील करता है। और स्कूल में बुलिंग्स होती हैं, गेमिंग में आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, आपको पता होगा गेमिंग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, और इसीलिए सुसाइडल केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बच्चों के, क्योंकि हाउ एंड वेयर दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। यस, सो नाउ यू हैव हाइलाइटेड अ वेरी नाइस पॉइंट कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं CJP प्रोटेस्ट को इससे भी लिंक करना चाहूंगी। सो व्हाइल आई वाज रीडिंग फ्यू कमेंट्स, बिकॉज व्हेनेवर अ प्रोटेस्ट anybody a movement starts in your country, तो दोनों साइड के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, और ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि there is no point behind these protests. So while I was reading comments, जो ऐसे CJP प्रोटेस्ट का कोई पिक्चर थी उसके नीचे, तो वहाँ लिखा गया था कि जो ये एक्चुअली में जो लोगों ने, जो बच्चों ने, जिनके लिए ये हो रहा है कि we are there standing up against the minister, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है वो एक्चुअली में वीकलिंग थे। बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे। This is what I'm saying. Exactly. I'm telling you perspective of a normal individual. वो कह रहा है कि वो वीकलिंग थे, वो ये भी टॉलरेट नहीं कर पाए इतना सा प्रेशर कि भैया I could not pass the exam or my paper leaked, तो अब मेरे पास पता नहीं अगले साल चांस होगा या नहीं होगा, वो सहन कर पाए, उन्होंने वो कर लिया, सुसाइड कर ली। सो क्या सच में वो एक वीकलिंग होते हैं? नहीं, सुसाइड से पहले बहुत प्रेशर, बहुत कुछ बच्चे के साथ हो रहा होता है जी।
सोसाइटी का प्रेशर होता है, बच्चे को पेरेंट्स का, फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चे को अपने खुद के करियर का प्रेशर है, किस सर्कमस्टेंसेस में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें करी है, कितनी मेहनत करी है, उसके अकॉर्डिंगली एक दिमाग के अंदर वो फियर, वो प्रेशर हर एक के लिए नहीं होता। अगर उस सुसाइड से पहले उसको हर्ड अच्छे से किया जाता, उसको प्रोसेस किया जाता, उसको अच्छे से सुना जाता। एक बार हम कहते हैं कि हम उस बच्चे को आराम से बैठ के सुन के, हम कहते हैं ना, हमें कोई सुन ही ले एक बार कि हमारे अंदर कितना कुछ है जो हम किसी को बयां ही नहीं कर पाए, तो कोई है ही नहीं मेरे पास सुनने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है, तो उनको लगता है कि सुसाइड इज द इजीएस्ट अटेम्प्ट। जी, बहुत इजी है सुसाइड करना, रेदर देन कि मैं अपनी ऑप्शंस दिमाग में आती नहीं है ना एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे स्टक सिर्फ यही होता है कि मैंने फोकस ही अपना नीट के लिए किया है, मैंने और करियर कोई ऑप्ट ही नहीं किया, और वो पेपर लीक हो गया, वो पूरा 1 ईयर, और दोबारा से उस चीज को वैसे करना, वो जो 1 साल उस पूरा बच्चे ने अटेम्प्ट की प्रिपरेशन है, मनी है, पेरेंट्स प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, जहाँ से वो कर रहे हैं वो, तो वो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है। जी, उससे पहले एक बार अगर हम कोशिश करें कि हाँ बच्चे को सुने, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं स्पेशली सुसाइड, उसको स्टॉप किया जा सकता है। मैंने काफ़ी सारे सुसाइड केसेस जो हैं वो हैंडल किए हैं, जो हॉस्पिटल में भी जब मैं थी तो वहाँ पर काफ़ी छोटे 11th के 12th के बच्चे आजकल के सिर्फ लोनलीनेस की वजह से या प्रेशर की वजह से कि हमारे मार्क्स इतने नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, तो दे आर ट्राइंग कि नहीं मैं हाउ डू आई फेस एक्चुअली द थिंग्स, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और आजकल तो बच्चे हर एक को सोसाइटी में ये है कि एक वो बना हुआ है ना, आई थिंक अभी हम वो मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, सोशल आइडेंटिटी एंड इमोशनल रेगुलेशन। सोशल आइडेंटिटी में है ये कि आप देखें ना कि आपको अपनी आइडेंटिटी अपने आप को प्रूव करना कि यस in the society that you are living, यस we want to prove that we are ahead of others. अहेड ऑफ Yes. अदर्स। तो सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर भी तो बहुत ज्यादा होता है। यस मैं किसी से कम नहीं हूँ, या आई एम ऑल्सो हेयर, मैं भी इस लाइफ में हूँ, जो समथिंग इज देयर। इसका प्रेशर जो होता है ना बच्चों पे, और आजकल तो बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा ऑनलाइन तो आप देख ही सकते हैं जी, तो उसकी वजह से भी बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और पेरेंट्स जो हैं वो भी सपोर्ट करें बच्चों को इस चीज़ के लिए कि रियल लाइफ इज बेटर देन रियल लाइफ। true. रियल लाइफ पे आजकल बच्चे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन ट्राई टू लिव इन रियल लाइफ। सुबह हमने ह्यूमर के बारे में बात करी, हमने मीम्स के बारे में बात करी। सो आजकल जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं तो एक राइज है मीम कम्युनिटी में। जो बच्चे हैं वो अपनी बातें मीम्स के थ्रू कह रहे हैं, थ्रू जोक्स कह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बच्चे इंटरनेट रिकग्निशन ढूंढ रहे हैं, मे बी बिकॉज दे आरंट हर्ड एट देयर होम्स बाय देयर पेरेंट्स। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, बिल्कुल यही होता है कि इफ द students or if the child is not heard by their parents, especially at home, और तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जो इमोशंस है वो बाहर एक्सप्रेस करते हैं कहीं ना कहीं तो चाहिए, तो ऑब्वियसली वो ऑनलाइन आ गए, सोशल आ गए। और ह्यूमर से वो करते हैं, ह्यूमर एक्चुअली क्या है, वो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को कम करता है, ओके, ठीक है, वो ब्रेक करता है, स्लो डाउन करता है। और जहाँ तक मीम्स और आपने कहा कि जोक्स और ह्यूमर से, तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें सुना जाए, जो घर में उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस सुने नहीं जा रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट या कुछ ऐसा ऑब्वियसली शेयर करेंगे कि जहाँ पर वो अपने आप को प्रूव करें, दिखाएं कि yes we are also there and we have these feelings जी, for this। बिल्कुल, एग्जैक्टली अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, आपने अभी बात करी है, तो उसमें आपने पूछा कि कॉकरोच बार बार आ रहा था, तो ये कॉकरोच वर्ड आप देखें ना आया कहाँ से, और आप
किसके लिए बोल रहे हैं, जी, ठीक है कि नहीं है। जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनको आप एक कॉकरोच की तरह रिप्रेजेंट कर जी, रहे जी। हैं, तो उनके लिए ये फीलिंग्स कहाँ हर्ट कर रही हैं, ट्रू। उनके लिए वो भी हर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला तो उन्होंने जेंजीज ने वही वर्ड पकड़ा और अपनी पार्टी का नाम ही वही रख लिया। और आप देखिए जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, इज इट लायबल टू से द यूथ और नेक्स्ट जनरेशन टू बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, वट एवर, आई कांट कमेंट लाइक दिस ऑन दैट पार्ट, बट एक अथॉरिटी तो होती है ना कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है। दूसरी चीज, बच्चों ने इस चीज को इसलिए ले लिया कि अगर कॉकरोच है तो फिर पूरे कॉकरोच फैला बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। अब कॉकरोच क्या करते हैं आपको पता ही है, तो वो बिल्कुल। पूरी सब जगह फैल गए बिल्कुल। और उन्होंने ये बता दिया कि हमारी ये फीलिंग्स, हमारे ये इमोशंस, हमारे ये हैं। अब आप बिल्कुल। बताएं इसका क्या है। हम इसको साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं मैम। तो मैंने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट वर्सेस कलेक्टिव एक्शन। सो व्हेनेवर आई स्टैंड अलोन आई फील हेल्पलेस। जब भी मैं एक इंसान किसी चीज के अगेंस्ट बोल रही हूँ, किसी के फॉर में भी बोल रही हूँ, सो आई फील हेल्पलेस। और जैसे ही वो कलेक्टिव एक्शन बन जाता है, पीपल आर स्टैंडिंग विद मी, इट गिव्स मी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू स्पीक। एग्जैक्टली। तो वो ही कहीं ना कहीं मीम कम्युनिटी में भी हो रहा है। क्योंकि जब मुझे दिखता है कि पीपल आर सपोर्टिंग मी, मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे फॉलोज मिल रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग माय पोस्ट, सो उससे क्या होता है, मेरी कम्युनिटी बन जाती है, तो उससे मुझे स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है। Exactly. विच इज कहीं ना कहीं ऑपोजिट टू दी सिनेरियोज चिल्ड्रन फेस एट होम, वेयरइन उनको महसूस होता है कि माई वॉइस इज नॉट हर्ड बाय माई पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अलोन हो जाता है, वो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। Exactly. तब भी वो इंटरनेट पे जाता है, अपनी फीलिंग्स को मीम्स के थ्रू लाता है, जो हमने सीजेपी प्रोटेस्ट में भी देखा कि कैसे जो जेंजीज हैं, पहले भी हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, बट जो ये प्रोटेस्ट था वो हमने आज तक नहीं देखा कि दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर स्टैंडिंग स्टिल with their agendas, but they are not crying, they are not holding candles, but they are holding slogans जो memes हैं, they are laughing at the scenarios, जो उनकी जो इतनी जो ट्रैजिक सिचुएशन नहीं है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पर वो तब भी हंस के ही जवाब दे रहे हैं। तो ये जेंजीज ही कर सकते हैं। अंदर का दर्द है, वो अंदर का दर्द है, अंदर का दर्द है, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट जेंजीज आर वेरी स्मार्ट, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड उनको पता है कि हमें करना क्या है। ट्रू। हमारी लाइफ में हमने कहाँ पर आगे जाना है, उनको उनका वे पता है। बट जब उनको कलेक्ट, अब अकेला कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, एक अकेला बोल रहा है, उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो जब वो अकेला कुछ ऐसा बोल रहा है जो सबके साथ रिलेट करता है, तो वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है। और जब इकट्ठे होकर, जैसे आपने अभी ये वाली थ्योरी बताई है, एग्जैक्टली बिल्कुल ट्रू, कि उसमें कलेक्टिविकली जो इम्पैक्ट आएगा वो अकेले का इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक अकेला कॉकरोच क्या करेगा, और कहाँ इतने सारे कॉकरोचेस आ जाएंगे, ग्रुप इकट्ठा हो गया, तो पूरा ग्रुप, पूरी कम्युनिटी, पूरे बच्चे स्टैंड, इतना यूथ जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, एग्जैक्टली, ठीक है कि नहीं, वो सब इकट्ठे हो गए कि हम इमोशनली वो अपने आप को बहुत सपोर्ट और बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। कि जहाँ आपके इमोशंस क्लब हो जाते हैं और वो सेम हो जाते हैं, और आप बिल्कुल कलेक्टिवली, बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक होल्ड और एक कॉन्फिडेंस और एक करेज आ जाती है हमारे अंदर कि हाँ, अब हम एक नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ इतने सारे और भी हैं। एग्जैक्टली, यस। और वही प्रॉब्लम जो मेरी है वो इनकी है, वो इमोशंस सेम है, वो फीलिंग्स सेम है, वो पेन सेम है, वो दर्द, वो हर्ट, सब कुछ सेम है, तो कलेक्टिवली उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत वेरी ट्रू। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जेंजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कॉन्फिडेंट भी है। बिल्कुल। बट मैम, जब मैं साइकोलॉजी में देखती हूँ, तो साइकोलॉजी में ये भी कहा गया है जो एक कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेंजीज ने ह्यूमर यूज किया। व्हेन वी लुक एट एवरीडे लाइफ, तो अगर मैं ह्यूमर को कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रही हूँ टू कोप विद माय इशू और टू अवॉइड माय इशू, सो समटाइम्स मैं क्या करती हूँ कि मैं हंस के उस चीज को टाल देती हूँ, या मैं हंस के उस चीज के बारे में कुछ करती ही नहीं हूँ। अब जो ये प्रोटेस्ट था, उन्होंने हंस के एक्शन लिया, एक्शन लिया, तो दैट इज गुड। गुड। बट
I have researched about this, that when we use humor as a coping mechanism to avoid the situations, it certainly affects our mental health, our Exactly. physical health, because we are suppressing our emotions. We are exactly. keeping it aside in some part of our body, and that body part starts paining. Paining, exactly. So how your mentally that what your emotions are getting suppressed are somewhere hiding in your body, and that is leading to pain in your body. मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो mental health है वो physical health से भी affect है. Exactly. So आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोपिंग जो ह्यूमर है वो बिल्कुल ठीक है कि आप अपने इमोशंस को उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं. जब आप अवॉइड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप उसको बस एक वैसे ही रिएक्ट करते हैं. ऐसी एक कैथारसिस थ्योरी है. कैथारसिस थ्योरी में है कि यू हैव टू, इट्स अ थ्योरी जिसमें आप अपने पूरे के सारे इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करें, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, थ्रू राइटिंग जर्नल्स, थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूजिक, थ्रू स्लोगन्स और एनी वे आउट. जी. अब जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें यही चीज़ ही यूज हुई है कि बच्चों ने अपने सारे इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली वेंट आउट किया है. बिल्कुल. वेंट आउट थ्रू म्यूजिक, थ्रू स्लोगन्स, थ्रू मीम्स. ऑल दीज आर देन दिस थ्योरी ओनली कि आपने अपने इमोशंस को बहुत रिलीज करना है. बिल्कुल. किसी भी तरीके से. एग्जाम्पल जैसे अगर आप कहे कि कुकर प्रेशर होता है, अगर उसमें बढ़ जाता है तो हम प्रेशर निकाल देते हैं ना, तो उसका प्रेशर निकलता हो जाता है, वो आराम से स्लो डाउन हो जाता है जब बहुत ज्यादा होता है. ऐसे ही जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो तो वो आपको वेंट आउट कर दे इन एनी फॉर्म. जी. दैट इज इट. वही कैथारसिस थ्योरी ये भी कहती है ना मैम कि आपको कोप करना अच्छा है, अवॉइड नहीं करना, साथ में +1 एक एक्शन लेना है. एक्शन लेना है ऑब्वियसली. सो अब वही हम जब सीजेपी प्रोटेस्ट को देखते हैं तो उन्होंने एक एक्शन ले लिया. एक्शन ही लिया. उन्होंने अपने स्लोगन्स यूज करके एक एक्शन लिया, इकट्ठे हुए और अपना जो एजेंडा था वो फुलफिल भी किया. सारी अपनी फीलिंग्स उन्होंने, सारे अपने इमोशंस जो हैं, ये एक्शन ही तो है कि उन्होंने आराम से एक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है अपना, थ्रू अपने स्लोगन्स के, अपने बैठ के अपना वो अपनी फीलिंग्स ही तो बयान कर रहे थे उसमें, थ्रू म्यूजिक, थ्रू ह्यूमर. That can be the takeaways for the students and their parents, ma'am. मुझे इसको तो मैं यही कहूँगी, डोंट सप्रेस योर इमोशंस. ठीक है कि जस्ट अंडरस्टैंड देम एंड मैनेज देम इन अ हेल्दी वे. And as a parent, we don't have to understand every meme or every trend. We just hope to understand the underlying emotion behind it. जी. Maybe a joke is a language of a child to understand, for connection, hope. He wants something from us. So just let them express their emotions and maybe a conversation is waiting for there. थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए, हमने बहुत कुछ सीखा. हमने ये देखा कि कैसे हम वर्ल्ड को एक साइकोलॉजिकल लेंस से देख सकते हैं. मुझे लगता है साइकोलॉजिकल लेंस से जब हम दुनिया को देखते हैं, we can understand people better. Exactly. And it makes world beautiful because हर इंसान के कहते हैं वर्ड्स, जैसे आपने कहा, उनके जो ये मीम्स हैं या जोक्स हैं उसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग्स हैं. they are asking for validation from the citizens of the country, from the government. और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है. वैलिडेशन, कनेक्शन, होप, एग्जैक्टली एग्जिट, सब कुछ. यस मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए. थैंक यू वेरी मच. सो कैसा लगा पॉडकास्ट? हमने कितना कुछ समझा. हमें ये समझ आया कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस थ्योरी ये कहती है कि हम जो अपनी लाइफ से सीखते आ रहे हैं कि मेरे बोले हुए की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हाइड करने के लिए मैं सरकाज़म या ह्यूमर यूज करती हूँ अपनी बात को आगे रखने के लिए. मैंने ये भी समझा कि कलेक्टिव एक्शन जब होता है तो एक बच्चा अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से बोल पाता है विद मच मोर कॉन्फिडेंस एज कंपैरिजन टू जब वो अकेले कोई बात बोल रहा होता है. विच वी कुड सी एविडेंटली इन द सीजेपी प्रोटेस्ट. जो बच्चे शायद क्लासरूम्स में, घरों में उतने कॉन्फिडेंटली ना बोल पाए, जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पे एक जैसे बच्चे जिन सबका एजेंडा सेम था, दे कुड स्पीक सो कॉन्फिडेंटली.
So it's very important to look at the world through this psychological lens to understand what lies behind the memes and the jokes that they are speaking to create awareness or raise their voices. So it's very important for all the parents out there to ensure that their children don't suppress their emotions. They don't use these coping mechanisms such as humor to speak on these scary topics. It's your responsibility to make sure that your student, that your child is comfortable enough to speak anything and everything about their life in front of you. I hope you like the podcast. Please stay tuned for more videos. Thank you so much.